So first, let us start with what is this exception handling concept. Now, what is the difference between errors and exception? First, we need to understand this. So, what is error and what are exceptions? Okay, so first, let us understand this. I hope the screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay. So, what do you think? What is the difference between error and exception? It is given on the screen as well. What is error? What is error? Like if you forget to give semicolon at the end of the statement, is it error? Yes, ma'am. Yes, compiler is going to show you error if you forget to give that semicolon, or instead of int, if you say integer, the complete word, or in only. So in that case, are you going to get error? Yes. Okay. So these type of errors are called as syntax error, isn't it? Syntax error. Like compiler will immediately catch you there and it will show you those errors. It won't compile your program at all unless and until you correct those things. Okay, correct all the syntax issues. So syntax errors, these are automatically catched by your compiler. है कि नहीं ऑटोमेटिकली कैच होते हैं ये कंपाइलर फर्स्ट इट विल check for all the syntax issue, and if syntax is correct, then only it will get converted into machine code or exe. So those are syntax error, like you are a curly bracket nahi diya aapne, imbalanced curly brackets are there, semicolon is missing. So those kind of, with scene, which operator you are supposed to use. So maybe for example with scene you are using insertion operator kind of thing, opposite आपने couple किया है operator और वो scene. So those kind of errors which are catched by your compiler, those are called as syntax error. Okay, syntax error, because you made a mistake in syntax. So poor understanding of programming language will make you generate this, or in that case only you'll generate these syntax errors, okay, or syntactic errors, because you haven't understood those syntax properly, that language properly. Now second type of errors are logical error. Logical error क्या हो सकते हैं? What is logical error? Division Your by logic zero. is wrong. Division by zero, can you say it is logical error? Logical error is something related to logic. You haven't understand the logic properly. You are supposed to write some kind of expression and you are writing something else. Syntax wise, it is absolutely correct. आपने proper syntax follow किया है, सब कुछ proper follow किया है. लेकिन logical understanding of that problem statement is not correct. Okay, like PBL, we used to give you a list of assignment. PBL में आप जो वो पूरा statement पढ़ते हो. So that while reading that problem statement, if your understanding is not clear for that that particular problem statement, in that case, it is possible that you will write a program which is syntactically correct. आपने proper syntax, सब curly brackets, semicolon, everything is properly given. But whatever I have mentioned in that problem statement, you haven't understood it properly. Okay, so while writing the code, some logical error has happened. So what is expected, that kind of output you are not getting, but that program will be executed. मतलब compiler आपको कुछ भी नहीं problem दिखाए, compiler won't show you any error because that is not related to syntax. Logical error मतलब syntax wise your program is absolutely correct, सब proper आपने use किया है, but logical understanding of that problem statement is not correct. Okay, so जो आपको expected output चाहिए था, वो expected output आपको नहीं मिलेगा. Say for example, admission के लिए you have written one function, admission. Okay, in admission you need to follow some flow. First you need to give CET, then you need to like go for those cap rounds, then document verification. So step by step that process is to be carried out. Okay, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सपोज मुझे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, तो मे बी आई मे चेंज द फ्लो ऑफ दिस एडमिशन प्रोसेस. ऐसे हो सकता है कि प्रोसेस का मेरा अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, तो I can maybe make some mistake in writing the code.
वो फ्लो मैंने गड़बड़ कर दिया, प्रोसेस वन आफ्टर अदर, और मे बी लाइक in problem statement I have mentioned all the documents are mandatory, okay, और मैंने as a programmer read करते वक्त वो read नहीं किया mandatory word, so in that case I can make optional things also, like one of the, even if the users verifies one of the document, the program will go for the next step in the admission. Okay, so if my understanding of that problem statement is not correct, it is possible that I can make logical errors. मेरा अंडरस्टैंडिंग गलत है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, वॉट एवर क्लाइंट इज सेइंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग, ओके, दैट इज लॉजिकल एरर. अगर क्लाइंट ने ऐसे कुछ मुझे फॉर्म बनाने के लिए बोल दिया और मैंने फॉर्म में भी कुछ रीशफल कर दिया, ओके, तो सिंटैक्टिकली इट इज ओके, यू कैन प्लेस एनीथिंग एनीवेयर, बट client is not expecting you to do so. Okay, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू लॉजिकल थिंग्स. तो अगर आपका अंडरस्टैंडिंग गलत है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, इट इज पॉसिबल दैट यू कैन क्रिएट लॉजिकल एरर्स. ओके, तो इन दैट केस आप कैसे कैच करोगे इस टाइप के लॉजिकल एरर्स? योर कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू शो यू एनी एरर बिकॉज सिंटैक्स वाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट. लॉजिकल एरर कब समझ में आएगा? जब आपको आउटपुट कुछ गलत आएगा. Yes, you are getting incorrect output, then only you will be able to understand logical error. काफी बार ऐसे होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो गया मैडम, लेकिन लाइक सिंटैक्स नो एरर इज देयर बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द आउटपुट. दैट इज बिकॉज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज पुअर. Okay, so that is related to logical error. So these two types of errors are there. Now beyond these two error, some one more thing is there, okay, which may occur at runtime or execution time. Okay, and those are called as exceptions. अब ये exception किस टाइप के होते हैं कि आपने syntax error, you haven't done any syntax error, logical understanding of the problem is also correct. आपको पता है completely you have understood the problem statement, what client is saying कि मुझे admission के लिए ये flow चाहिए, you have understood that flow, you understand each and everything. लेकिन while writing that code, okay, while writing that code logically and everything it is absolutely correct, but suppose there is some division, a divided by b, okay, and while accepting the input from user like a divided by b, so for b if user enters 0 value, a is 10 and b is 0, so in that case any number divided by 0 will give you infinite number. Okay, so infinite number, can you store it in the memory? Is it possible to store any infinite number in the memory? No, because your memory is finite, it is limited. Yes, memory आप बोलते हो ना कि मेरी like I have this much memory, this configuration, so you have limited memory, so how can you store any infinite number in that? Okay, so dividing by 0 is what? It is not logical error, neither compile time error. Okay, ये तो रन टाइम यूजर ने वो a डिवाइड बाय b, तो b के लिए यूजर ने 0 वैल्यू दे दिया, तो ये आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि इट इज पॉसिबल कि यूजर में गिव 0 for b. Okay, so that anticipation is called as exception handling. These are exceptional situation, as the name suggests. एक्सेप्शनल सिचुएशन है. मैं जब यूज करती हूँ ये सॉफ्टवेयर तो मुझे पता है कि आई वांट टू डिवाइड a बाय b, सो लॉजिकली आई एम नॉट गोइंग टू एंटर 0 हियर, है ना, मुझे भी पता है एज ए यूजर आई नो सम दिस थिंग, बट it is possible sometimes exceptionally the user may enter 0 for b and then it may generate divide by 0 kind of situation. अब divide by 0 ऐसे तो कुछ नहीं कि कंपाइलर को समझ में आएगा, it is like run time this situation has occurred. रन टाइम ये प्रॉब्लम आया है क्योंकि यूजर ने वो गलत वैल्यू दे दिया, तो अगर गलत वैल्यू यूजर ने दिया है ना ऑन द स्पॉट, दैट रन टाइम दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैज occurred. So these exceptional situations we can handle with the help of exception handling. Okay, so there is a difference between errors and exception handling. एरर मतलब क्या है कि आपका सिंटैक्स, मतलब सबसे पुअर एरर तो मैं बोलूंगी सिंटैक्स एरर, बिकॉज योर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इज नॉट प्रॉपर इन दैट केस, आपने सिंटैक्स को ही नहीं समझा है, सो दैट इज द पुअर टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, सो दोज आर सिंटैक्स एरर. अब आपने C++ लैंग्वेज यू हैव प्रॉपरली लर्नड,
Okay, all syntax and everything. But whatever problem statement is given, it is not understood, then it is logical error. And beyond these two, some exceptional situation may occur at runtime. Those are called as exception. ठीक है, तो आपका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी करेक्ट है, लाइक आई हैव टू डिवाइड टू नंबर्स, तो यस आई हैव रिटन अ कोड फॉर a divided by b. Syntax also it is correct, but at runtime user has given 0 for b. Okay, 0 value for b variable. So in that case, runtime, it will generate infinite number which I will not be able to store in my memory. So this is exceptional situation which I have to handle at runtime. So these type of errors are called as exceptions. इन्हें error बोलते ही नहीं, इनको बोलते हैं exceptions. Okay, error इन दोनों को बोलते हैं, syntax and logical. These are exceptions. अब divide by 0 is I told you. Then array index out of bound. Like say for example, you have declared one array with size 10. ठीक है? So I'll declare one array with size 10, and suppose I have some for loop to store all those values. वो सब input मैंने ले लिया है user से. Okay, so 10 values I have stored here in array and limit is 10. ऐसे declare किया. Then for loop to accept all these value and everything I've done. Now afterwards, for some calculation, no? Here I want to do some calculation, and like something is there, like a into b plus something, and then I want this last element which is stored in this array for calculation purpose. तो array का last element कहाँ पे store होगा ये? Which index last element? 9. 9 है ना, because array index starts with 0, so 10 element means 0 to 9. Okay, लेकिन by mistake में ये भूल गई as a programmer. What I said कि it is 10 while writing, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि 10 is the last element, तो मैंने यहाँ पे by mistake I forgot that it is from 0 to 10. So these type of things are possible. Otherwise one more possibility is there कि मैं user से ले रही हूँ ये index जो है कौन सा, for calculation of this formula I'm taking this number from user, है ना, तो जो भी user number बोलेगा यहाँ पे, so accordingly I need to put it here in array index. तो उस element को array में से मुझे लेना है for this calculation. So array of I, this element I have accepted. अब यहाँ पे मान लो user ने input देते वक्त I के लिए value दिया है 11. So array of 11. अब ये जो error है, if I'm giving 11, so now will my compiler able to find this error? Do you find any syntax error over here? इस कोड में कुछ भी syntax का problem दिख रहा है आपको? No, syntax absolutely correct है. मैंने array को declare किया है, user से input लिया है, array का element access, कुछ भी problem नहीं है. Compiler के लिए you are doing everything fine. Similarly, मुझे जो करना है यहाँ पे like now syntax error नहीं है, दूसरा कौन सा है? Logical error. तो logic में कुछ problem है कि यहाँ पे? Logic में भी problem नहीं है. मैंने user से input लिया और उस array element को, वो particular array element मैं calculation के लिए ले रही हूँ. तो logically also it is perfect, जो user को चाहिए वैसे. लेकिन problem कब आएगी? मतलब I'm not having any of these two type of error. First two, syntax correct है, logically भी user ने जो बोला था वो मैंने as it is program I have written. Okay, but run करते वक्त by mistake user ने क्या कर दिया? I के लिए it has given 11 value. Okay, so now I am trying to access array of 11. Does this array of 11 exist in the memory? No. No. Oh. Memory is not allocated to ARR of 11. Memory is allocated from 0 to 9th for this array. Okay, and I am trying to access 11th element. अब ये problem कब आया? मैंने user से जब ये accept किया. So this is runtime ना? Runtime, when I am executing it, user has entered 11. So this is runtime situation. Runtime इस type के problem वगैरह आते हैं. So those are called as exception. So this type of exception is called as array index out of bound. ये array की index जो है I, it has gone out of bound. Range से बाहर चली गई वो. Okay, so this type of exception is called as array index out of bound.
ओके और डिवाइड बाय 0 भी उसी टाइप की एक्सेप्शन है. रनिंग आउट ऑफ मेमोरी भी एक सिचुएशन है कि यू आर ट्राइंग टू गिव व्हाट टू से डायनामिकली यू वांट टू असाइन मेमोरी. ऐसे कुछ तो भी एक मेरा एरे है, let us call it as dynamic array है तो d underscore array, okay, and then d underscore array I'm giving memory to it. तो कुछ तो मेमोरी मुझे चाहिए, बहुत बड़ी मेमोरी like 2000 मेमोरी लोकेशन something like that. ऐसे मेमोरी मैंने असाइन की. अब मान लो आपकी मेमोरी में उतनी स्पेस ही नहीं है, सिचुएशन नहीं आ रहा है इसकी, आपका मेमोरी फुल हो गया, मे बी आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है एंड समथिंग हैज हैपेंड कि दिस मच मेमोरी इज नॉट अवेलेबल से फॉर एग्जांपल. अब इस टाइप की भी एरर, कैन योर कंपाइलर कैच दिस एरर? कंपाइलर को भी ठीक ही है, आपने प्रोग्राम भी ठीक ही लिखा है, तो दिस इज नॉट एरर काइंड ऑफ सिचुएशन. रन टाइम, दिस इज रन टाइम मेमोरी एलोकेशन है ना, डायनामिक. So runtime, when it is trying to assign this much memory to this array, it is this much memory is not available. So this is like runtime scenario. It is not compile time scenario. Runtime इसको उतनी memory मिली ही नहीं है देने के लिए. तो अगेन अगर इस टाइप का एक्सेप्शन है तो एबनॉर्मल आपके प्रोग्राम, इन सिचुएशन में क्या होता है जनरली, योर प्रोग्राम इज एबनॉर्मली टर्मिनेटेड. ऐसे काफी बार होता है कि योर प्रोग्राम इज नॉट कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड, बीच में ही वो टर्मिनेट होके एंड यू गेट द मैसेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन. यस, तो इस टाइप के जो सिचुएशन लाइक हियर आल्सो इफ यू गिव 11 वैल्यू, तो दिस इज व्हाट, इफ यू ट्राई टू एक्सेस 11th एलिमेंट, दिस इज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ योर प्रोग्राम. मतलब इसके बाद जो भी कोड आपने लिखा है, यहाँ पे कुछ कोड होगा बाद में, सम कोड इज देयर, दैट कोड वोंट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली. Here, if this situation occur, directly your program jumps to end. Directly आपके प्रोग्राम मेन से बाहर आ जाएगा वो abnormal termination. This situation is called as abnormal termination. अब आपको रिटर्न 0 का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. अगर आपका मान लो यहाँ से एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया, आपने 11 वैल्यू दिया तो रन टाइम ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन आकर हो गया कि दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग. तो कंपाइलर गॉट कंफ्यूज कि ये कुछ है ही नहीं. तो फ्रॉम हियर दिस द कंट्रोल विल डायरेक्टली ट्रांसफर आउट ऑफ योर मेन प्रोग्राम. तो यहाँ पे आपका कंट्रोल आएगा. तो उसके बाद लाइक फ्रॉम हियर व्हाट एवर कोड इज रिटन आफ्टर दिस, इट वोंट गेट एग्जीक्यूटेड. तो अभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न 0 मिलेगा नहीं, 0 वैल्यू इट विल नॉट गेट. Yes, and that time immediately the operating system will understand कि return 0 मुझे मिला नहीं है, directly इस टाइप का कुछ तो error आया है and the control is directly transfer out of your main function because I didn't get 0 value as return value. तो operating system को समझ गया कि this is some abnormal situation, so operating system will display the error message on the screen that abnormal termination has happened. ओके, सो रिटर्न 0 का आपको अब तक जस्ट ऐसे लिख रहे थे आप, रिटर्न 0 लिखना है बिकॉज मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर था, दैट्स द रीजन. बट दिस इज द सिचुएशन वेयरइन यू विल अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस. अगर इस टाइप के एक्सेप्शन हो जाते हैं रन टाइम, तो क्या हो जाता है, इट वोंट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट पार्ट. डायरेक्टली एक्सेप्शन होने के बाद जंप होता है, आपका कंट्रोल बाहर आता है एंड एबनॉर्मल टर्मिनेशन हैपेंस, व्हिच इज एज अ प्रोग्रामर इज इट अ गुड सिचुएशन. आप इमेजिन करो आप एक गेम खेल रहे हो, okay, some game you are playing and in that game कुछ तो आपने गड़बड़ कर दिया, कुछ तो प्रेस किया, कुछ की प्रेस की जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी उस गेम में. you are supposed to use only arrows up, down, left, right arrows and space bar, nothing else, but by mistake you may press something else. तो इसके लिए प्रोविजन आपके प्रोग्राम में है ही नहीं कि कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया कहीं पे और ही प्रेस कर दिया, और वो डायरेक्टली वो गेम से बाहर आ गया कंट्रोल, डायरेक्टली वो कंट्रोल बाहर आ गया एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेइंग मी एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम. सो इज इट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस? इस टाइप के प्रोग्राम आपने लिखे हैं एज ए प्रोग्रामर, इज इट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि बीच में से मैंने गड़बड़ कर दी? सी आई एम अ यूजर ऑफ योर एप्लीकेशन, आपने गेमिंग एप्लीकेशन लिखा है जिसकी मैं यूजर हूँ, and as a user I should get very good experience of your application. इस टाइप के कुछ तो abnormal termination हो गया क्योंकि मैंने गलत की प्रेस की है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना. as a user I should not get this type of what you say treatment.
है ना, कि डायरेक्टली एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट जब आप यूज करते हो किसी एप्लीकेशन को, तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन कि अगर मैंने गलती कर भी दी एज ए यूजर, इट शुड गिव मी अप्रोप्रिएट मैसेज कि यू शुड नॉट प्रेस दिस, यू शुड प्रेस दिस की, ओनली यूज दिस मेनी की. आई शुड गेट द अप्रोप्रिएट मैसेज, है ना. बाहर नहीं आना चाहिए कंट्रोल एबनॉर्मल टर्मिनेशन. तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने गलती क्या की है एज ए यूजर. योर प्रोग्राम शुड गिव मी अप्रोप्रिएट मैसेज कि ये आपने गड़बड़ की है, आपको ये कीज यूज करनी चाहिए थी. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर शोइंग मी अप्रोप्रिएट मैसेज, देन ओनली यू शुड कम टू एंड ऑफ योर प्रोग्राम. ऐसे हैफेजेटली आपका प्रोग्राम बीच में से बंद नहीं होना चाहिए. आप एटीएम मशीन पे जाते हो, एटीएम मशीन पे आपने कुछ गड़बड़, कुछ गलत की, प्रेस की, कुछ की, तो इट शोज यू प्रॉपर मैसेज एंड देन इट कम्स आउट. ऐसे नहीं कि उसमें आपने गलत कर दिया तो डायरेक्टली इट कम्स आउट ऑफ दैट एप्लीकेशन, दैट प्रोग्राम. तो देयर इज अ वे टू, लाइक हाउ यू शुड ट्रीट योर client or a customer. There is a way for that. Okay, and that is nothing but exception handling. Exception handling में अगर इस टाइप के रन टाइम के exception आते हैं, तो as a programmer you should handle that exception properly, give proper message to the user, and then come out of your program. ऐसे हैफेजेटली बाहर आके वो यूजर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने किया क्या भाई, ये बाहर कैसे आ गया. Do you agree? Do you understand the situation why this exception handling is required? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ना, आपको ये समझना चाहिए कि मुझे क्यों चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग. देन हाउ टू इम्प्लीमेंट, दैट इज सिंपल पार्ट. वो तो सिंटैक्स समझना पड़ेगा आपको, दैट इज सिंपल पार्ट. सिंटैक्स इज सिंपल पार्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट यू शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, क्या हो सकता है अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो. So this is the relevance of exception handling, or the importance of this topic, exception handling, why you need to study and why should you have exception handling in your program, right? So coming back to again this situation, this is called as exception handling. So exception handling is what indicate problems that occur during program execution, है ना, execution के type. And it occurs infrequently, बहुत frequently नहीं होता है. यूजर भी आपका स्मार्ट है, ऐसे कुछ नहीं कि वो कुछ भी प्रेस करेगा. तो this is exceptional situation, infrequent situation, not a frequent situation. But though it is exceptional situation, you should handle it. अदरवाइज आपके एप्लीकेशन पे से प्रोग्रामर का, सॉरी यूजर का विश्वास ही हट जाएगा, ये बीच में ही क्यों अटक रहा है, क्यों बाहर आ रहा है. सो लाइक दैट. सो एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन रिजॉल्व एक्सेप्शंस, अलाउ अ प्रोग्रामर टू कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग. मतलब ये क्या करता है, व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग इज देयर, इट अलाउस अ प्रोग्राम टू कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग. एबनॉर्मली वो बाहर नहीं आएगा. नोटिफाई द यूजर अबाउट द प्रॉब्लम. आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है वो यूजर को जाना चाहिए कि आपने ये गलत की प्रेस की, यू शुड प्रेस दिस की. सो प्रॉपर नोटिफिकेशन शुड बी गिवन टू अ यूजर, एंड देन टर्मिनेट द प्रोग्राम इन अ कंट्रोल्ड मैनर, नॉट एबनॉर्मली, कंट्रोल्ड. टर्मिनेशन शुड बी इन अ कंट्रोल मैनर. टर्मिनेट तो करना ही है, यूजर ने गलत की प्रेस की है तो यू आर गोइंग टू टर्मिनेट द प्रोग्राम, बट नॉट इन अ अनकंट्रोल्ड मैनर. इट शुड बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर. कंट्रोल्ड मतलब by giving proper notification to the user कि आपने ये गलती की है, please enter this. Okay, makes program robust and fault tolerant. So with exception handling it will be more robust program. Okay, it was not earlier in the original C++, but later on it was added as a new feature in unsigned C++. तो जो C++ का earlier version आया था, this exception handling wasn't there. And after that, unsigned C++, unsigned C++ is what? After that, it was standardized. C++ was standardized, and at that time, this exception handling was introduced in C++. What is the full form of unsigned? What is unsigned C++? What is the purpose of unsigned? What is the purpose of unsigned? Initially, I explained you the purpose of unsigned. Purpose मैंने एकदम पहले ही, if you remember, initially in the very first lecture only, I explained you the purpose of unsigned. It is used for what? Standardization.
Okay, Standardization Institute. So basically UNSIL, this is one organization, okay, which is responsible for giving standard version, because see, everyone, different companies can come with different versions of C++. किसी एक कंपनी ने C++ का ये वर्जन बनाया, किसी और कंपनी में दूसरा बनाया, तो across globe और world wide हाउ कैन यू टॉक इन कॉमन टर्म्स, मतलब कोई एक प्रोग्रामर यहाँ पे बैठ के, इंडिया में बैठ के C++ प्रोग्रामिंग कर रहा है और कोई कहीं और कर रहा है, सो हाउ कैन वी talk on common terms. So for that these type of standard institutes are there which standardize C++, मतलब एक standard C++ का format मिला है हमें, okay, by this, and this organization is responsible for that, okay, and the full form is American National Standards Institute. American National Standards Institute, which is responsible for standardization. Okay. Now, so it was introduced at that time. Okay. The point is that it was introduced later on, exception handling. Now, how to handle exception? So these are the steps. Okay. Find the problem. कहाँ पे problem आ सकता है? तो that situation you need to identify. Like I said कि a divided by b, अगर मैंने कहीं पे किया है a divided by b, तो there is a possibility that for b user can enter 0, है ना, ये situation हो सकता है, तो you should be able to anticipate. या इस situation में भी when you from user you are accepting the value, और जो कि user गलत डाल सकता है. अब मान लो मैं a divided by कहीं पे result is equal to a divided by b. So this is the situation, and from user I am taking the value of a as well as b. अगर ये situation है तो user में enter 0 for b. So this you should be able to anticipate कि यहाँ पे problem हो सकता है. अब मान लो मेरा exception ये है directly a into b, and जो भी result आएगा तो उस रिजल्ट को मुझे डिवाइड करना है 10 से. नाउ इन दिस सिचुएशन शुड आई हैंडल डिवाइड बाय 0 एरर? इज इट पॉसिबल दैट आई कैन गेट डिवाइड बाय 0 एरर रन टाइम? नो नो, क्योंकि मैंने एज ए प्रोग्रामर खुद ही लिख दिया यहाँ पे 10, तो 10 के जगह पे दूसरा कोई नंबर आएगा ही नहीं. Okay, so in this situation I'm okay, even if that exception is not handled, ठीक है, yes, but पॉसिबिलिटी रन टाइम की आपको, यू शुड बी एबल टू एंटिसिपेट दैट सिचुएशन. यहाँ पे तो नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी यू हैव मेंशन दैट नंबर डायरेक्टली, तो यहाँ पे यूजर से तो आ ही नहीं रहा है नंबर, सो ऑलवेज यू आर डिवाइडिंग बाय 10, नो अदर नंबर. ओके, सो इन दिस सिचुएशन डिवाइड बाय 0 आ ही नहीं सकता है. लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया तो इन दिस सिचुएशन इफ यूजर एंटर्स 0, इन दैट केस क्या होगा? डिवाइड बाय 0 सिचुएशन आएगा. Okay, so you should be able to anticipate that situation कि कहाँ पे ये problem हो सकता है. तो hit the exception, find the problem is the first thing. Now inform that error has occurred. मतलब इसमें इस situation में error हुआ है. So like if b is equal to 0, in that case the error has occurred. So that error should be informed. Okay, that is throwing the error. पहले तो error को find out करना, then throwing the error, then receive the error information. ये जो यहाँ से throw किया आपने error, you need to catch that error, okay, properly. और catch करने के बाद take corrective action, that is handle the exception. मतलब जो corrective action लेना है वो catch करने के बाद then take the corrective action. Okay, so anticipate the situation, find the problem, throw that error. कि जो भी एरर उसने की है, डिवाइड बाय 0 है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, व्हाटएवर एरर इज देयर, यू नीड टू थ्रो दैट एरर इन द प्रोग्राम. ओके, एंड एज ए प्रोग्रामर यू नीड टू कैच दैट एरर एंड हैंडल दैट एरर. ओके, सो दिस इज द लाइफ साइकिल और द स्टेप्स यू कैन से. नाउ हाउ टू डू दैट पार्ट आई विल एक्सप्लेन, हाउ टू इंप्लीमेंट दीज phases. Okay, so before that we'll go through this points related to exception. Exceptions provide a way to handle errors generated by our programs by transferring control to functions called as handlers. Okay, तो पहले तो क्या है कि आपको exception को catch करना है, yes, sorry, hit करना है, then throw it and then catch it. तो catch कहाँ पे होता है? जहाँ पे handle होती है वो error. Okay, so you need to catch that error and give it to the handler of that exception.
Okay. To catch exceptions, we have to place our code on which we want exception handling in the try block. If an exception occurs, the control is passed to the handler. Otherwise, handlers are ignored. मतलब अगर exception मिला आपको यहाँ पे तो handler को throw होगा वो error and catch होगा. अगर एक्सेप्शन हुआ ही नहीं, यूजर ने प्रॉपर बी की वैल्यू प्रॉपर दी है, तो देन इन दैट केस दिस पार्ट वोंट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली. जो नेक्स्ट आपका कोड होगा, नॉर्मल कोड होगा, वो एग्जीक्यूट होगा. ये सब जो है थ्रो, कैच एंड एवरीथिंग, हैंडलर, व्हेन दिस विल बी एग्जीक्यूटेड इन केस इफ यूजर हैज एंटर्ड इनकरेक्ट थिंग्स or exception has occurred. That time only these things will be executed. Otherwise, handlers are completely ignored. The code to be executed that may produce exception is placed in try block. अब यहाँ पे आपको try and catch का combination बनाना है. Try में कौन सा कोड जाएगा? जहां पे आपके exception होने के chances है, so that part to be added in try. And catch में कौन सा कोड जाएगा कि जो handle करने के लिए आप use करोगे. Okay, if this situation occur, whatever you want to do, that has to be there in the catch. So catch is a handler actually, handler of that exception. Okay, and try में क्या डालना है जहां पे आपकी error हो सकती है. So like in this situation, in this example, try में क्या जाना चाहिए? ये कोड जाना चाहिए या ये कोड जाना चाहिए try में. और कैच में क्या जाना चाहिए? कैच में कि if this situation occurs, मुझे डिस्प्ले क्या करना है कि kindly do not enter 0 value for B. Okay, so appropriate message to be displayed on the screen, so that message to be added in the catch. Okay, तो try में ये जाएगा और catch में जो आपको action लेनी है, so that has to be entered in catch. This is the example. Okay, कि यहाँ पे आपका main program है. ओके यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कोड नहीं लिखा है स्पेसिफिक, डायरेक्टली जस्ट टू एक्सप्लेन यू द सिंटैक्स. ओके, तो दिस इज ट्राई ब्लॉक. हाउ टू राइट ट्राई एंड कैच ब्लॉक, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. फर्स्ट सिंटैक्स, अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ओनली. ओके, विल टेक वन रिलेवेंट एग्जांपल. तो ट्राई कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड ट्राई. ओके, ट्राई एंड ट्राई शुड हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. तो आपको लिखना कैसे है, दैट आई विल एक्सप्लेन हियर. Try. Now what I told you, try में कौन सा कोड चाहिए जहां पे आपके प्रॉब्लम होने के चांसेस, लाइक रन टाइम कुछ तो गड़बड़ होने वाला है. सो लाइक दैट दोज थिंग्स टू बी इंक्लूडेड हियर. यहाँ पे पॉसिबिलिटी इज देयर कि बी के लिए यूजर में एंटर 0. ओके, सो दोस टाइप ऑफ और दिस इक्वेशन आल्सो, इस टाइप के सिचुएशन आपके ट्राई में जाने चाहिए. ओके, एंड कैच में क्या जाना चाहिए? In catch, what should be there in catch? Catch has to be written in this manner. Okay, what is the purpose of catch? Purpose of catch is to catch that exception. उसे catch करना है. Okay, तो catch करने के बाद you will get something, no? See, when you first you need to throw the ball and then catch the ball. तो यहाँ से क्या होगा? In case if this situation occurs, okay, आपका B अगर 0 हो गया मान लो, तो in that case you need to throw exception. तो यहाँ से एक throw का आपका statement चाहिए. Okay, you need to throw the exception. So maybe I'll throw integer type of exception. तो मैं throw 0 बोलूंगी. Okay, so if I say throw 0, how to catch this? First you need to throw that exception. How to catch it here? See which type of exception I am throwing? Integer. So here I should catch integer type of एक्सेप्शन. तो उससे मुझे यहाँ पे कैच में कैच करना पड़ेगा. थ्रो इज टू थ्रो द एक्सेप्शन. एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन यू कैन थ्रो. यहाँ पे इंटीजर क्या है, तो फ्लोट या कैरेक्टर, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आप थ्रो कर सकते हो, बट इट हैज टू बी कैच्ड एप्रोप्रिएटली. मतलब यहाँ से अगर मैंने इंटीजर को थ्रो किया है तो इंटीजर ही कैच होना चाहिए एक्सेप्शन. ओके, एंड इनसाइड कैच you accepted this or catch this exception. Okay, and then you need to display the appropriate message on the screen कि यहाँ पे divide by 0 error problem है, जो भी आपको display करना है कि exception and then what exception has actually occurred, like please do not enter 0 for B, or please enter non-zero values. जो भी appropriate message, I mean to say, आप इसे और refine करो, non-zero values.
or second number or something like that. So appropriate message to be displayed here. Okay, now in addition to that, यहाँ से जो आपने थ्रो किया है, जीरो थ्रो किया है फॉर एग्जांपल, अगर आपको वो डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले भी कर सकते हो आप. ये आपने जो थ्रो किया है वो कहाँ पे कैच हो गया, इसमें ई में कैच हो गया. सो इफ यू वांट टू डिस्प्ले दैट ई कैन आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. ओके, so that is possible. Or yeah, like you can display the appropriate message and then close the catch. Okay, so this is how the syntax to be used. Try में क्या होना चाहिए, the code where there is a possibility that runtime you may find some error. Okay, and catch में क्या होना चाहिए, उसका handler होना चाहिए, how to handle that. Okay, but before handling you need to catch it properly. जो भी throw किया है यहाँ से, that you need to catch that exception properly here. Okay, so this is about the syntax. This part I haven't completed yet because यहाँ पे क्या होगा ना, each time मैंने कुछ if नहीं डाला है यहाँ पे for condition checking. Each time मैंने उल्टा किया है, इनफैक्ट यहाँ पे calculate कर दिया है and after that I am throwing the exception. It should be opposite rather, है ना. ये कहाँ पे होना चाहिए, दिस हैज टू बी प्रॉपरली हैंडल. अगर बी को वैल्यू 0 मिला है देन ओनली आई शुड थ्रो, अदरवाइज आई शुड नॉट थ्रो एक्सेप्शन. ये तो क्या होगा, हर एक केस के लिए थ्रो होगा एक्सेप्शन. इट विल एग्जीक्यूट दिस एंड इट विल थ्रो इट. ओके, तो लॉजिकली हाउ टू राइट दैट सिचुएशन आई विल टेल यू. बट यहाँ पे पॉइंट ये था कि लाइक ट्राई में क्या होना चाहिए और कैच में क्या होना चाहिए एंड व्हाट शुड बी द सिंटैक्स. ओके, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं भी है तो आई कैन थ्रो द एक्सेप्शन, दैट इज आल्सो पॉसिबल. मतलब ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सम कोड हैज टू बी देयर. सिंपली आल्सो आई कैन थ्रो एंड कैच द एक्सेप्शन. तो यहाँ से मैंने अगर थ्रो 0 किया है, सम एनी नंबर, इट शुड नॉट बी 0 ओनली. इफ आई से थ्रो 10 इज व्हाट, एन इंटीजर नंबर. तो अगर मैं यहाँ से अगर इंटीजर को थ्रो कर रही हूँ तो आई शुड कैच इंटीजर ओनली. Okay, so how that execution will take place, it will enter in try, it will throw this exception. Throw करने के बाद directly control is transferred to catch. Okay, तो अगर मान लो इस throw के बाद मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, see out statement is there, some hello something, hello world or something, some thing I have displaying here. So now tell me, will it display this message on the screen? Will this message? No. Why? Because see here, whatever is there before try भी आपका कुछ तो main में code लिखा होगा, है ना. आपका int main है, यहाँ पे कुछ तो code है, some code is there. Okay, so it will execute this code. Once this code execution is done, it will enter in try. Try में आपने क्या किया है, throw 10 directly. Throw 10 is what? Throw means what? It will transfer the control to catch. रिलेवेंट कैच, जहां पे आपने इंटीजर को कैच किया है. तो इंटीजर को कैच आपने कहां पे किया है, इस स्टेटमेंट में किया. सो द कंट्रोल इज फ्रॉम हियर डायरेक्टली कंट्रोल गोस टू कैच. इट विल एग्जीक्यूट दिस पार्ट. अब ये एग्जीक्यूट करने के बाद देयर इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट फॉर कैच. यहां से कंट्रोल कहां पे जाता है, इट इज नॉट सिमिलर टू योर फंक्शंस. फंक्शन में क्या होता है कि यहां से अगर फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल आपका कहां पे आता है, यहाँ पे आता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आता है. बट थ्रो, कैच एंड थ्रो, दिस इज नॉट सिमिलर टू योर फंक्शन एग्जीक्यूशन. ये कैसे होता है कि यहाँ से अगर एक बार वो बाहर निकल गया, थ्रो लाइक थ्रो मतलब क्या है, यहाँ से बाहर निकल गया, इट विल एंटर इन द रिलेवेंट कैच, इट विल एग्जीक्यूट इट एंड फ्रॉम हियर डायरेक्टली इट विल क्लोज द कैच स्टेटमेंट. मतलब कंट्रोल आपका यहाँ पे आएगा, बाहर आएगा. सपोज यहाँ पे सपोज सम स्टेटमेंट इज देयर, ABCD, something I have displayed. So it will display ABCD and not this hello message on the screen. It will never come back to this place. Once that exception is thrown, उसके आगे आगे जाता जाएगा program. It won't execute the next part. So this you need to keep in mind. Okay, so this part is never executed. Directly throw है तो it will go out of that try block. It will enter in catch and once it execute the catch, the control doesn't come back to this place. It directly catch के बाहर आ गया, मतलब directly next statement पे चला गया. तो ये part आपका execute नहीं होगा अगर exception आ गया. So this is how exceptions are executed. Okay, syntax समझते हैं. I told you the situation कि what is the importance of exception.
आई एम टेलिंग यू द सिंटैक्स. अब इसके बाद हम रिलेवेंट एग्जांपल भी देखेंगे जहां पे ये यूजफुल कैसे है, हाउ टू यूज इट विद डिवाइड बाय जीरो एंड ऑल दैट. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स इश्यूज फर्स्ट, कि कौन सा पार्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है. नाउ फोकस ऑन दैट फर्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पे वन मोर थिंग आई टेल यू. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन. वन मोर थिंग आई टेल यू. सपोज हियर मान लो मैंने यहाँ पे कैर टाइप का एक्सेप्शन ले लिया. ओके, so is it correct now? This is C. I'm throwing integer type of exception and I'm catching character type of exception. So is it correct? No. This is also incorrect situation. Here you will get error. You have to catch the appropriate exception. अगर मैं integer को throw कर रही हूँ तो I should catch integer exception only. Are you getting the point? तो अगर character type का अगर मुझे करना है तो कैसे मुझे करना पड़ेगा? Some character I need to throw from here, then only I can catch character type of exception. तो जिस टाइप का एक्सेप्शन आप थ्रो करते हो उस टाइप का ही आपको यहाँ पे कैच करना है. अब ये मल्टीपल कैच और थ्रो कर सकते हैं क्या हम? यस, इट इज पॉसिबल. यू मे हैव मल्टीपल थ्रो एंड कैच एक्सेप्शंस आल्सो. अब यहाँ पे एक ही प्रोग्राम में मान लो यहाँ पे फर्स्ट वन इज कैर, सेकंड कैच स्टेटमेंट आई एम हैविंग. लाइक if else जैसे आप करते हो ना मल्टीपल if else, तो वैसे कैच भी मल्टीपल हो सकते हैं. तो ये क्यों लगते हैं? लाइक इंटीजर I एंड देन दिस कैच. ठीक है, तो इन दिस कैच अगर लाइक से हियर दिस इज कैरेक्टर टाइप ऑफ एक्सेप्शन. कुछ आपने गलती कैरेक्टर रिलेटेड कुछ की है, इनकरेक्ट कैरेक्टर इज एंटर. यूजर ने इनकरेक्ट कैर को एंटर किया है और यहाँ पे कुछ डिवाइड बाय जीरो वाला हमारा एरर है. तो आई विल डिस्प्ले द एरर ऑन द स्क्रीन कि एक्सेप्शन व्हिच एक्सेप्शन हैज अकर्ड, ही डिवाइड बाय जीरो हो गया आपका, डिवीजन बाय जीरो. ठीक है, तो अप्रोप्रिएट मैसेज वहां पे जाना चाहिए. तो मान लो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने एक कैरेक्टर टाइप का थ्रो किया है तो इट विल ट्रांसफर टू दिस प्लेस. अगर मैंने मान लो कुछ इंटीजर टाइप का थ्रो किया है, समथिंग आई हैव थ्रोन इंटीजर टाइप ऑफ एक्सेप्शन, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? देन इफ आई एम थ्रोइंग इंटीजर इट विल फर्स्ट गो टू दिस कैच स्टेटमेंट. ये मिसमैच हो गया इसका टाइप, तो इट विल सर्च फॉर another catch statement. यहाँ पे उसको integer type का catch मिल गया. तो then which catch will be executed for this throw statement? It will execute the second catch statement. Okay, जहां पे वो type match मिलेगा वो catch आपका execute होगा. Okay, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से try में like you have different situations. एक सिचुएशन डिवाइड बाय जीरो वाली है जो कि आपने हैंडल किया है. एक सिचुएशन आपकी कुछ कैरेक्टर इनपुट यूजर से ले रहे हो और उसने गलत इनपुट दे दिया, तो दैट सिचुएशन. सो यू मे हैव मल्टीपल थ्रो स्टेटमेंट फ्रॉम हियर. और जो थ्रो में, जिस थ्रो में आपने जो भी इनपुट डाला होगा, यहाँ से अगर मैं कैरेक्टर डालती हूँ तो कैरेक्टर टाइप का कैच होगा एक्सेप्शन. अगर मैं इंटीजर डालती हूँ तो वो इंटीजर टाइप का कैच होगा एक्सेप्शन. सो लाइकवाइज बेस्ड ऑन द थ्रो स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग कैच विल बी एग्जीक्यूटेड. Okay, so that is the importance of this catch statement. और throw में क्या होना चाहिए? Exactly वही आप catch में catch करोगे. Okay, अब मान लो यहाँ से मल्टीपल थ्रो स्टेटमेंट है और मेरा लाइक ये सिचुएशन क्या है कि अगर कैरेक्टर टाइप का है तो मुझे वो मैसेज डिस्प्ले करना है, अगर इंटीजर टाइप का है तो मुझे ये मैसेज डिस्प्ले करना है. ओके, सो रिलेवेंट कैच स्टेटमेंट यू कैन हैव. और मान लो यहाँ से मैंने दो ही टाइप के यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल किए, इंटीजर एंड कैर. अब फ्लोट और डबल के लिए आई शुड हैव अगेन, अगर पॉसिबल है कि यहाँ से फ्लोट और डबल टाइप का भी अगर मुझे एरर आता है तो आई शुड अगेन हैव फ्लोट एंड डबल. ओके, तो आई कैन हैव मल्टीपल कैच स्टेटमेंट इफ आई एम हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हियर. यहाँ से अगर मेरे मल्टीपल थ्रो स्टेटमेंट है तो उतने मुझे कैच स्टेटमेंट भी हो सकते हैं. आई कैन हैव अ डिफॉल्ट कैच ऑल्सो. डिफॉल्ट कैच कैसे दिखाते हैं? विथ 3 डॉट्स. मतलब ये जो कैच है इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी डेटा टाइप. ये किसी एक डेटा टाइप से स्पेसिफिक नहीं है. अगर मान लो यूजर ने कैरेक्टर टाइप का एक्सेप्शन थ्रो किया है तो इट विल एग्जीक्यूट दिस पार्ट, दिस कैच.
है ना, ये कैच एग्जीक्यूट होगा और डायरेक्टली आपका कंट्रोल कहाँ पे आएगा, ये सब कैच छोड़ देगा वो, इफ इट फाइंड्स वन कैच हियर, इट वोंट एग्जीक्यूट दीज रिमेनिंग कैच, जहां पे उसको मैच मिलता है बस वो एग्जीक्यूट करता है वो, then it will not enter in the remaining catch statement. Directly आपका कौन सा मैसेज आएगा आफ्टर दैट, ABCD, it will directly come out of the entire loop. अगर मान लो इसे यहाँ पे लाइक इफ आई गिव अनदर सिचुएशन, यहाँ से मैंने थ्रो क्या किया है, 10 थ्रो किया है, तो फर्स्ट इट विल फाइंड कि यहाँ पे मैच मिला नहीं, तो इट विल नॉट एंटर हियर, इट विल अगेन फाइंड, हाँ यहाँ पे मैच मिल गया मतलब इट विल एग्जीक्यूट दिस पार्ट, ये एग्जीक्यूशन होने के बाद डायरेक्टली कैच के बाहर आएगा, यहाँ पे सभी कैच को इग्नोर करेगा, उसके बाद जस्ट इट विल एग्जीक्यूट द रिलेवेंट कैच एंड जंप आउट ऑफ ऑल द कैच एंड इट विल एग्जीक्यूट ABCD. अब तीसरी सिचुएशन, आई एम थ्रोइंग हियर 10.5 मतलब यहाँ पे भी मैच नहीं मिला, यहाँ पे भी मैच नहीं मिला, तो देन इट विल एंटर इन द डिफॉल्ट कैच, और यहाँ पे मुझे जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट, सो व्हाटएवर आई हैव रिटन हियर दैट पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड देन इट विल कम आउट ऑफ इट एंड इट विल एग्जीक्यूट दिस ABCD. तो इस सिचुएशन में इनमें से एक भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट टू कैच में से नहीं, डायरेक्टली इट विल एंटर इन द थर्ड वन इज डिफॉल्ट मतलब सबके लिए है वो, अगर उसे इनिशियल सिचुएशन में कोई नहीं मिला, मैच नहीं मिला, तो देन डिफॉल्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. अब ये डिफॉल्ट मतलब बाकी रिमेनिंग सारे डेटा टाइप के लिए डिफॉल्ट काम करेगा आपका, क्योंकि आपने कैरेक्टर और इंटीजर के लिए स्पेसिफिक लिखा है तो स्पेसिफिक एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई और नंबर आपने दिया तो देन इन दैट केस इट विल एग्जीक्यूट द डिफॉल्ट कैच. सो लाइक दैट एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस. Okay, so this is about the syntax issues कि execution होता कैसे है, लिखना कैसे है आपको. Okay, so syntax related issues. After this we'll see. हाँ, yes. More than throw exceptions कैसे execute होते हैं? Sorry. More than one throw exceptions. अगर division by zero का एक exception है, throw किया है हमने. Yes, understood. तो उसके लिए ना you have to write a logic. कि यहाँ पे if else वाला लॉजिक वो मैंने नहीं अभी डिस्कस किया है, सो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द रिलेवेंट एग्जांपल. ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इफ दिस इज अ सिचुएशन तो थ्रो ये वाला एक्सेप्शन, एल्स इफ कोई और सिचुएशन है, इफ दिस इज अ सिचुएशन देन थ्रो some character type का exception. So there are different situation wherein you need different types of exception to be thrown. तो ये लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा, अलग अलग सिचुएशन में आपके अलग अलग, ये सपोज मान लो डिवाइड बाय जीरो वाला है, ये अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, सो यू मे हैव डिफरेंट एक्सेप्शनल सिचुएशन व्हिच वी नीड टू थ्रो the relevant exception and that you need to catch it appropriate place. मतलब मान लो यहाँ पे कौन सा है, इंटीजर वाला एक्सेप्शन है, तो यहाँ से मैं जहाँ पे इंटीजर वाला एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो कर रही हूँ, तो ये कब होना चाहिए, when my b value is equal to 0. a डिवाइड बाय b कर रही हूँ और b का वैल्यू अगर 0 है तो then it should throw this exception, इंटीजर टाइप का एक्सेप्शन, which I'll catch it here and I'll display divide by 0, और यहाँ से डायरेक्टली बाहर आएगा और ABCD डिस्प्ले करेगा. Are you getting the point? So there are हाँ फर्स्ट एक्सेप्शन थ्रो करने के बाद डायरेक्टली ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो सेकंड एक्सेप्शन कैसे कैच कर पाएगा वो? जाएगा ही नहीं और जाना भी नहीं चाहिए. अब मान लो आप गेम खेल रहे हो, कोई तो गेम आप प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो गेम प्ले करने के बाद लाइक इफ और मे बी ATM में आपने कुछ इनकरेक्ट समथिंग हैज एंटर्ड व्हिच इज इनकरेक्ट. Okay, so it should not go for the next flow ना, it should come out of all these things. प्रॉपर मैसेज देने के बाद उसको बाहर आना चाहिए. तो अगर मैंने गलत, मान लो मैंने गलत की एंटर की है, ओके, कि दैट इज नॉट करेक्ट ओनली, तो इट शुड शो मी दैट एरर कि ये गलत है एंड देन इट शुड कम आउट. और फिर उसके बाद अगर की गलत है तो मेरा विड्रॉ डिपॉजिट जो भी मैंने किया है प्रोसेस, इट शुड नॉट गो फॉर दैट विड्रॉ ना. अगर मेरी पिन ही गलत है तो विड्रॉ के लिए क्यों जाना चाहिए वो? Are you getting the point? अगर पिन, if my pin is incorrect, it should throw the exception. थ्रो करने के बाद एक्सेप्शन, इट शुड कम आउट ऑफ दिस एंटायर लूप. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, विड्रॉ का कुछ तो प्रोसेस लिखा है यहाँ पे,
withdraw process, kuch to withdraw process is written over here. So if my pin is not correct here, some mistake is there in the pin, so I'm throwing the exception. Okay, exception throw karne ke baad directly it should come out, it should not go for withdraw process. No, नहीं जाना चाहिए ना, थ्रो करने के बाद वो उसे रिलेवेंट एक्सेप्शन हैंडल करके बाहर आना चाहिए. फिर यहाँ पे आपका रूटीन क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि यू नीड टू एंटर, फिर से वो मेनू दिखाने वाला आपको कोड लिखना पड़ेगा. यहाँ से यू हैव टू शो दैट मैसेज कि 1 फॉर दिस 2 फॉर दिस, वो फिर से हमें मेनू दिखता है. इट वोंट सी इफ माय पिन इज इनकरेक्ट, इट वोंट शो मी द नेक्स्ट थिंग कि विड्रॉ वाला वो सारा मेनू नहीं दिखता है मुझे. यहाँ से वो डायरेक्टली बाहर आता है और फिर वो फिर से मुझे वो मेनू दिखाता है कि 1 फॉर विड्रॉ, 2 फॉर दिस एंड लाइक दैट. ओके, सो इट शुड नॉट गो, मतलब एग्जीक्यूशन भी वैसे ही चाहिए आपका कि अगर आपने रन टाइम कुछ मिस्टेक की है तो डायरेक्टली इट शुड कम आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग. वो नेक्स्ट प्रोसेस आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने एंटर करते वक्त आपका इनपुट ही गलत है. इनपुट गलत है तो इट शुड नॉट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट पार्ट. डायरेक्टली वो एरर मैसेज मुझे आना चाहिए, इट शुड कम आउट, और उसके बाद आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, जो भी प्रोग्राम आपको करना है उसके बाद एग्जीक्यूट कर सकते हो. ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो जरूरत ही नहीं कि नेक्स्ट को चेक करने की. अब मान हाँ, अगर ये करेक्ट है, आपने बी का वैल्यू करेक्ट दिया है तो देन इट शुड गो फॉर द नेक्स्ट. अब विड्रॉ में जो प्रॉब्लम किया है वो मुझे हैंडल करना है, दैट इज अनदर थिंग अगेन. Okay, we'll take few more example, don't worry, but now just try to understand the syntax and execution sequence. That is the purpose of today's lecture. Okay, tomorrow we'll discuss more relevant example. Okay, this